Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 12. Today's topic is hedging strategies using future contracts. Students, we have been talking about hedging strategies largely in the previous two lectures. We just started this topic, and as you know what is meant by hedging. Hedging is basically to lock in your position for some future date. आप अपने आप को lock in कर लेते हो for some future date. तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम ये देखेंगे, अभी तक हमने बात की थी कि हेजिंग को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, हेजिंग का क्या पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपेटिटर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनीज ओन फिलॉसफी, ओन थिंकिंग, बीओडीज का क्या पर्सपेक्टिव है, हायर अथॉरिटीज का क्या उसमें पर्सपेक्टिव है. तो हेजिंग को हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. प्लस ऑल्सो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर उसका क्या ट्रेंड है, दैट वेदर दी हेजिंग इज टू बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट. क्या इंडस्ट्री में लोग वाकई उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या नहीं, और क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अब कितना करना चाहिए हेज, क्या अमाउंट होनी चाहिए, क्या रेशो होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर परफेक्ट हेज अवेलेबल ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस हेज. फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हेज रेशो क्या होती है, हेज रेशो को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टॉक इंडिसेस एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. ओके, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग हेज एंड द शॉर्ट हेज. लॉन्ग हेज का मतलब ये है कि लॉन्ग इज टू बाय. लॉन्ग का मतलब क्या है, लॉन्ग इज टू बाय. तो जब भी हम कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए अपने आप को एग्रीमेंट करते हैं तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग हेज. So, to buy a future contract means long hedge. To buy a future contract for hedging is termed as. So to buy a future contract for hedging is termed as a long hedge. Suppose that F1 is equal to initial futures price, F2 is equal to final futures price, and S2 is equal to final asset price. You hedge the future purchase of an asset by entering into the long future contract. So the cost of the asset must be equal to S2 minus F2 minus F1 is equal to F1 plus basis. And what is the basis? I'm sure you must be knowing that what is meant by basis. Yes, basis is the difference between the spot and the future. The basis is the difference between spot and the future. Now what is the short hedge? Suppose that F1 is equal to initial futures price and F2 is equal to final futures price. S2 is equal to final asset price. You hedge the future sale of an asset by entering into a short future contract. Price realized is equal to S2 प्लस F1 माइनस F2. बैक से देखें इस पे क्या डिफरेंस है, F2 माइनस F1, यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे. शॉर्ट हेज में सिंस वी वांट टू सेल द शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वी आर गोइंग टू ऐड the S2, that is the final asset price, into the difference of the initial futures price and the final futures price. And again this is the basis, so F1 plus basis is equal to the price realized. So students, let's do a numerical. एक एक्सरसाइज आपको कराना चाहती हूँ. ओके, लेट्स डू दिस एग्जांपल. इट सेज it is June 8th and a company knows that it will need to purchase
20,000 barrels of crude oil at some time in October or November. Oil futures contract are currently traded for delivery every month on NYMEX, and the contract size is 1000 barrels. The company therefore decides to use the December contract for hedging. And take a long position in 20 December contracts. The futures price on June 8th is $18 per barrel. The company finds that it is ready to purchase the crude oil on November 10th. It is therefore closes out its future contract on that date. The spot price and the future price on November 10th are per barrel and $19.10 per barrel. Acha ji, basically it is June 8th and a company knows that it will need to purchase 20,000 barrels of crude oil at some time in October or November. Oil futures contract are currently traded for delivery every month on NYMEX and the contract size is 1000 barrels और इनको चाहिए 20,000 चाहिए, ठीक है ना.
तो परहैप्स अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 1000 है तो परहैप्स दे वुड बी नीडिंग 20 contracts, future contract. The company therefore decides to use December contract for hedging and take a long position in 20 December contract. अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखें, अक्टूबर और नवंबर में उनको चाहिए कहीं ये ऑयल, लेकिन उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट चूज किए हैं वो उसकी जो डेट है दैट इज दिसंबर. वाई? मैंने आपको इसकी रीजन बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हम जो हेजिंग वाला है वो बिफोर द डिलीवरी, लाइक हमें जब चाहिए होगा हम ये कोशिश करेंगे कि जो डिलीवरी मंथ है वो बाद में हो एज कम्पेयर टू व्हाट वी वांट टू चूज. सो दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए लिए हैं ताकि हमें अक्टूबर या नवंबर में उसको वो अवेलेबल हो जाए. द फ्यूचर्स प्राइस ऑन जून 8th इज $18 per barrel. The company finds that it is ready to purchase the crude oil on November 10th. It therefore closes out its future contract. इन एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम तो उसका दिसंबर में था, लेकिन ये नवंबर में क्लोज करते हैं. जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स इससे पहले भी बताया था कि हेजिंग में हम हमेशा डिलीवरी मंथ से पहले क्लोजिंग करते हैं उसकी. इट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट डे. द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस ऑन नवंबर आर 20 and 19 per barrel. So the gain on the future contract is, gain कितना हुआ? So the gain on the future contract नाइनटीन में से 18 माइनस करें, इट इज इक्वल टू ये है ना 18, और अभी की जो है फ्यूचर प्राइस नवंबर 10th को वो 19th की ये. सो इट इज इक्वल टू $1.10 पर बैरल. बेसिस क्या होगा? द बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड द फ्यूचर. -20 -19, it is equal to 20 minus 19.1 0.9 per barrel. ठीक है. द इफेक्टिव प्राइस पेड इन डॉलर is the final spot price less the gain on the futures, or so the effective price paid in dollars per barrel is the price final spot price. Final spot price क्या है? ये है 20. The spot price and the future price. This is the spot price and this is the future price. The spot price is 20. Final spot price. ठीक है ना? Less the gain on the future. And what is the gain? This is the gain. ये gain है आपका. $1.10. It is equal to कितना हो जाएगा? 20 minus 1.10. 18.9 हो गया. ये अब ये जो 18.9 है जो हमारी इफेक्टिव प्राइस है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वो क्या तरीका है? वो ये है कि अगर हम इसको इनिशियल फ्यूचर प्राइस में अगर हम बेसिस को ऐड कर दें तो दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू द सेम. सो व्हाट इज द इनिशियल प्राइस? इनिशियल प्राइस वाज दिस. इनिशियल प्राइस
प्लस बेसिस, ठीक है ना। इनिशियल प्राइस है 18 प्लस बेसिस कितना, ये है 0.9, इट इज इक्वल टू 18.9। वही आ गई ना फिगर, सेम फिगर ये और ये सेम है, ठीक है। सो दी ये आपकी हो गई इफेक्टिव प्राइस टू बी पेड। एंड हाउ मेनी जो बैरल्स हैं वो कितने चाहिए थे हमें, कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें चाहिए थे, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए थे और 20,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हमें चाहिए था। सो 20,000, द टोटल प्राइस पेड इज 18.9 multiplied by 20,000. ठीक है। सो दिस इज द टोटल प्राइस पेड। आपने टोटल जितने आपके वो आपको ऑयल चाहिए था 20,000 बैरल का, आपने उससे उसको मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए इफेक्टिव प्राइस को पे करने के। नंबर 1 वाज कि आप उसमें प्राइस डालेंगे दी फाइनल फ्यूचर प्राइस और उसमें से आपने लेस कर दिया गेन को, ठीक है ना। फाइनल फ्यूचर प्राइस में से अगर आप गेन को लेस कर देंगे तो यू विल गेट द इफेक्टिव प्राइस। एंड व्हाट इज द गेन? गेन इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस फाइनल फ्यूचर प्राइस एंड द इनिशियल प्राइस, ठीक है। इसी तरह अगर आप इनिशियल प्राइस में बेसिस को ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव राइज यू टू गिव द इफेक्टिव प्राइस, जो कि सेम होगी जो हमने पिछले स्टेप में निकाली है। लाइक हम इसको रिकन्फर्म कर रहे हैं कि वेदर इट इज द सेम और द नॉट। सो द इनिशियल प्राइस प्लस बेसिस इज इक्वल टू द सेम थिंग। सो एंड टोटल प्राइस पेड का मतलब ये हुआ कि $18.9 है और हमें कितने बैरल्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दैट इज 20,000। उसको स्ट्रेट अवे आप सिंपल उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3,78,000। सो दिस इज बेसिकली द टोटल प्राइस पेड for buying 20,000 of barrels of crude oil. So students, this example was to be dealt with how you would calculate the effective price to be paid, right? अच्छा जी students, now moving on, मैंने आपको concept दिया था about the choice of a contract का और जैसे कि आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि चूज अ डिलीवरी मंथ दैट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू बट नॉट लेटर देन द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द हेज। अब हमने जैसे इस पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया, क्रूड ऑयल की जो डिलीवरी डेट थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो दिसंबर थी, ठीक है ना। और जो उसमें हमें चाहिए था, जिस वक्त हमें चाहिए था डिलीवरी उसकी नवंबर या अक्टूबर में, तो हमने वो मंथ डिलीवरी चूज किया। वी हैव चोजन द डिलीवरी मंथ दैट इज एज क्लोज टू एज पॉसिबल। दिसंबर से वो क्लोज था बट नॉट लेटर देन दिसंबर, दिसंबर से आगे ना जाए वो, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द हेज। व्हेन देयर इज नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एसेट बीइंग हेज्ड, चूज द कॉन्ट्रैक्ट हुज फ्यूचर प्राइस इज मोस्ट हाईली कोरिलेटेड विद द एसेट प्राइस। अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एसेट का अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठा लेंगे जिसकी प्राइस उससे हाईली कोरिलेटेड हो विद द एसेट प्राइस ऑफ दैट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रॉस हेजिंग, ठीक है ना। सो क्रॉस हेजिंग अकर्स व्हेन द टू एसेट्स आर डिफरेंट। कंसीडर फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके हवाले से बताया था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन पर्टिकुलर एसेट यू मे रिप्लेस इट विद सम अदर एसेट जो कि उसी किस्म का हो या उसकी जो प्राइस है वो हाईली कोरिलेटेड हो with that particular asset. So consider for example an airline that is concerned about the price of a jet fuel. Because there is no future contracts on the jet fuel, it might choose to use heating oil future contracts to hedge its exposure. तो अगर jet fuel के ऊपर future contracts available नहीं है तो they might use some heating oil future contracts in order to hedge its exposure, ठीक है। Now the hedge ratio. What is hedge ratio? Hedge ratio is basically the ratio of the size of the position taking in the future contracts to the size of the exposure. So hedge ratio is equal to, हम इस definition के ऊपर बाद में आएंगे जो आपको स्लाइड में नजर आ रही है, but just to give you an idea, optimal hedge ratio से पहले what is meant by the hedge ratio? It is the size of the position hedge ratio is equal to
ऑप्टिमल क्या होती है वो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज हेज रेशो. हेज रेशो इज इक्वल टू साइज ऑफ द पोजीशन टेकन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. साइज क्या है उस पोजीशन का, लाइक हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स यू आर गोइंग टू हैव. साइज ऑफ द पोजीशन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द एक्सपोजर. So hedge ratio is equal to size of the position divided by size of the exposure. So the hedge ratio is the ratio of the size of the position taken in the future contracts to the size of the exposure. When the asset underlying the future contract is the same as the asset being hedged, it is natural to use a hedge ratio of 1. अगर तो आपने जो underlying asset future contract का है वो और जो एसेट आप हेज करने जा रहे हो वो दोनों सेम है, तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि उसमें बेसिस रिस्क भी 0 होगा और हेज रेशियो भी आपकी 1 होगी, राइट. दिस इज द हेज रेशियो वी हैव यूज्ड इन दिस एग्जांपल कंसीडर्ड सो फार. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया 20,000 बैरल्स ऑयल वाली, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर एंटर्ड इनटू फॉर द डिलीवरी ऑफ एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ ऑयल. तो हम उसको एग्जैक्टली उसी अमाउंट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने ढूंढे क्योंकि उसका अंडरलाइंग एसेट सेम था. When cross hedging is used, setting the hedge ratio of equal to 1 is not always the optimal. जब आपने hedge करना है तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए 1 वाली रेशियो ही हमेशा फिजिबल हो. The hedger should choose a value for the hedge ratio that minimizes the variance of the value of the hedged position. आपने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे आपकी वेरियंस ऑफ द वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो जाए, राइट. सो दिस इज बेसिकली दी optimal hedge ratio. Optimal hedge ratio says the proportion of the exposure that should optimally be hedged is rho standard deviation of S divided by standard deviation of F. Standard deviation of S क्या है? Standard deviation of S is the change in the spot price during the hedging period. That is delta S. जो standard deviation है वो क्या चीज है? Standard deviation is the change in the spot price during the hedging period. Delta S means that change in the spot price during the hedging period. And what is standard deviation of F? It is the standard deviation of, this is basically delta F. Delta F is the change in the future price during the hedging period. So delta F is the change in the futures price during the hedging period, and rho is the coefficient of correlation between delta S and delta F. चेंज इन द स्पॉट प्राइस और चेंज इन द फ्यूचर प्राइस का जो कोरिलेशन है दैट इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो द ऑप्टिमल हेज रेशियो इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन दैट इज रो इनटू द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेल्टा एस टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेल्टा एफ. सो हम इसको ऑप्टिमल हेज रेशियो को हम लिखेंगे इस तरह, दिस इज इक्वल टू एच स्टार. ठीक है ना, ये क्या चीज है? दिस इज द चेंज इन दी दिस वन. डेल्टा एस इज द चेंज इन दी स्पॉट प्राइस विच इज एब्रीविएटेड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो एच स्टार को हमने क्या दिया? दिस इज द ऑप्टिमल हेज रेशियो. दिस इज रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट between the coefficient of correlation between the delta S and delta F. ठीक है, अच्छा जी. So the optimal hedge ratio क्या चीज है? The optimal hedge ratio is the product between, आप बताएंगे? Yes, very good. The product between, yes, the correlation coefficient and the change in the spot price and change in the future price. तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, द ऑप्टिमल हेज रेशियो इज द प्रोडक्ट ऑफ द coefficient of correlation between delta S and delta F and the ratio of standard deviation of delta S and
delta F. So if rho is equal to 1, standard deviation of F is equal to standard deviation of S, the hedge ratio H naught is H star is 1. So the result is to be expected, because in this case the future prices mirror the spot prices perfectly. Like जो future prices ना वो spot price को perfectly mirror करती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जैसे कि आपको पता जरूरी नहीं होता कि फ्यूचर प्राइस जो है वो exactly mirror करे spot prices को. If rho is equal to 1, अगर हम ये कर लें rho is equal to 1 and delta F, standard deviation of F is equal to 2 standard deviation of S, like अगर जो spot है वो double है as compared to the future, then the hedge ratio is equal to क्या होगी, guess करेंगे. spot price को हमने कहाँ लिखा होगा, ऊपर है ना, न्यूमरेटर में. फार्मूला था H नॉट इज इक्वल टू रो standard deviation of S divided by standard deviation of F. Putting values, rho is equal to 1, standard deviation of S is equal to 2, standard deviation of F is equal to 1, this is equal to 2, so it is equal to 0.5. ठीक है. So जो आपकी optimal hedge ratio है that is equal to 0.5 in this case. Is that clear? The result is also expected because in this case the future price is always changed by twice as much as the spot price. तो future price यहाँ पे हमारी twice है या double है या future price हमारी twice change होती है as compared to the spot price. और students usually यही pattern होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि स्पॉट प्राइसेस और फ्यूचर प्राइसेस वो एग्जैक्टली एक दूसरे को मिरर नहीं करते. कई दफा ये होता है कि फ्यूचर प्राइसेस डबल हो जाती हैं या उससे कम रिस्पॉन्ड करती हैं एज कम्पेयर टू व्हाट दी स्पॉट प्राइसेस स्टैंड्स आर. लाइक स्पॉट जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स, और ये एग्जैक्टली जो आप ये कह लें कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्पॉट प्राइस जो है वो जो फ्यूचर प्राइस है वो एग्जैक्टली मिरर कर रही हो स्पॉट प्राइस को. बहुत कम ऐसा होता है इफ द मार्केट्स आर परफेक्ट एंड द सिचुएशन इज आइडियल, अदरवाइज नहीं होता. अच्छा जी, नाउ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इफ रो इज इक्वल टू 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस, जिसके ऊपर हमने डिसएग्री किया कि जरूरी नहीं होता कि जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस को एग्जैक्टली मिरर आउट करे. So what is basically the optimal hedge ratio? Optimal hedge ratio is the slope of the best line when delta S is regressed against the delta F. And this is intuitively reasonable because we require H star to correspond to the ratios of changes in delta S and in delta F. So basically the dependence of variance of, मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखाऊंगी. Basically it is the dependence of variance of hedges position on hedge ratio. यहाँ इसको हम ग्राफ करते हैं. दिस इज द वेरिएंस ऑफ पोजीशन, और मैंने आपको बताया कि ये बेस्ट फिट लाइन कौन सी है. दिस इज द हेज रेशियो एच एंड दिस इज द ऑप्टिमल हेज रेशियो, जिसको हमने क्या दिया, एच स्टार. ये हेज रेशियो वाला एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया हेज रेशियो को, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वेरिएंस ऑफ पोजीशन को, और हमने एक स्लोप ऑफ बेस्ट फिट लाइन व्हेन डेल्टा एस इज रिग्रेस्ड अगेंस्ट दी डेल्टा एफ. इस तरह का ग्राफ आ जाएगा. बेसिकली जहाँ पे ये मिनिमम होगी दैट इज बेसिकली दी एच स्टार,
So the hedge effectiveness can be defined as the proportion of the variance that is eliminated by hedging. This is R square from the regression of delta S against delta F and equal to rho square. So स्टूडेंट्स मैं आपको ये लाइन भी बताती हूँ कि रिग्रेशन ऑफ स्पॉट प्राइसेस को हम कैसे फ्यूचर प्राइसेस के साथ रिग्रेस करेंगे. अनदर ग्राफ फॉर यू. Regression of change in the spot price against change in the future price. आपने ये जो आपके पास ये स्कैटर डायग्राम है उसमें से आपने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लिए. ठीक है ना. दिस इज द चेंज इन डेल्टा एफ एंड चेंज इन द डेल्टा एस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई एम श्योर दिस इज क्लियर. ये हमने रिग्रेशन ऑफ चेंज इन द स्पॉट प्राइस अगेंस्ट द चेंज इन द फ्यूचर प्राइस को रिग्रेस कर लिया. जो बेस्ट फिट लाइन गुजरी है दैट इज व्हाट द ऑप्टिमल हेज रेशियो इज. Okay, students, now we will talk about the optimal number of contracts. The optimal number of contracts. Okay, optimal number of contracts क्या होंगे? आपने optimal hedge ratio तो कैलकुलेट कर ली. Now the optimal number of contracts कितने लेंगे आप for short positions or for long positions? Basically, optimal number of contract required is equal to n star is equal to h star n a. अभी मैं डिफाइन करती हूँ ये क्या क्या चीजें हैं. डिवाइडेड बाय क्यू एफ, वेयर n star is the optimal number of contract QF is equal to size of one contract NA is equal to size of positions being hedged, and n star is the optimal number of contracts. So basically whenever you are interested to find out the optimal number of contracts, you are going to use H star. H star is basically the optimal hedge ratio. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए. QF is equal to size of one contract, NA is equal to size of position being hedged. Now students, moving on, we will talk about the stock index future. बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. व्हाट आर दे? लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. A stock index tracks changes in the value of a hypothetical portfolio of stocks. The weight of a stock in the portfolio equals the proportion of the portfolio invested in the stock. So basically there are different stock indices. जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स हैं डीजे इंडस्ट्री एवरेज के, मिनी डीजे इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 index, so on and so forth. So there are different stock indices
उन स्टॉक इंडिसेस की बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अपने बना लेंगे, और उन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइंग एसेट है दैट इज बेसिकली द इंडेक्स। जैसे हम कह रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की बेस के ऊपर हमने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के को अंडरलाइंग एसेट रख के, यानी उसकी जो चेंजेस हैं उससे उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिटरमिन होगी। तो दैट इज बेसिकली one of the very wise logic and reason in order to have some future contract जिसकी exactly वही जो movements है future contract की वो होंगी जो कि market की movement होगी, क्योंकि हम index को कहते हैं कि ये usually barometer होता है for measuring the financial performance of any economy। तो हम जो stock market है that is basically a barometer for measuring the performance of the economy or for the measuring the performance of the financial sector of that particular country। तो हमने स्टॉक इंडेक्सेस को जब ले लिया एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर जो मूवमेंट्स होंगी वो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमिन होंगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो होगी जिस रेशो से या जिस लेवल से या जिस फ्रीक्वेंसी से स्टॉक इंडेक्स की वैल्यूज में चेंजेस आएंगे। So, if the hypothetical portfolio of stocks remain fixed, the weight assigned to the individual stocks of the portfolio do not remain fixed. When the price of one particular stock in the portfolio rises more sharply than the other, more weight is automatically given to that stock. Some indices are constructed from the hypothetical portfolio consisting of one or each of the number of stocks. The weights assigned to the stock are then proportional to their market price, with एडजस्टमेंट बीइंग मेड व्हेन देयर आर स्टॉक स्प्लिट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक तरीका होता है जिससे आपने इंडेक्स बना लिया, और इंडेक्स बनाने का ये तरीका है कि हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियोज बना लिए और फिर आपने उनको वेट से साइन कर दिए, और फिर वो मार्केट की जो प्राइस चेंजेस है उससे आप उसका रेट डिटरमिन करेंगे। सो दिस इज अबाउट दी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स। बहुत कॉमन है, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में भी कराची स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स दे आर बीइंग ट्रेडेड and they can be used for measuring the market efficiency। market efficiency को हम measure करते हैं with the help of हम ये देखते हैं कि क्या stock index futures contract को use करने से market में efficiency आएगी या नहीं आएगी। now hedging an equity portfolio। hedging an equity portfolio, what is meant by that? Basically आपके जो stock index futures हैं they can be used to hedge a well diversified equity portfolios। stock index futures जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसका underlying asset जो है वो stock index है as compared to any other thing। so the stock index futures can be used to hedge a well diversified equity portfolio। if the portfolio mirrors the index, the optimal hedge ratio is equal to 1। जैसे कि हमने कहा था कि अगर स्पॉट प्राइस, अगर फ्यूचर प्राइस जो है वो exactly mirror है स्पॉट प्राइस का, तो then hedge ratio is equal to 1। so if the portfolio mirrors the index, the optimal hedge ratio H star equals to 1, and we can rewrite it, the number of contracts that should be sorted is, suppose P is equal to current value of the portfolio, A is equal to current value of stocks underlying one future contract number of future contracts that should be shorted is N star is equal to P divided by A. So N is the total number of contracts which must be shorted, and star is equal to total number of future contracts that must be shorted. So it is equal to P, that is current value of the portfolio,
divided by A, that is current value of the stocks underlying one future contract. अच्छा, suppose for example that a portfolio worth 1 million mirrors the S&P 500. एक पोर्टफोलियो है 1 मिलियन का जो कि S&P 500, ये भी एक इंडेक्स है, उसको मिरर करता है. द करंट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज 1000 एंड द ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द 250 टाइम्स द इंडेक्स. इन दिस केस P is equal to 1 million and A is equal to 250,000. And what is A? A is equal to current value of the stocks underlying one future contract. So how many contracts are going to be shorted? हम number of current value of the portfolio को divide कर देंगे. So let me write down this example for you. Suppose for example that a portfolio worth $1 million mirrors the S&P 500. The current value of the index is 1000 and each futures contract is on 250 times the index. So P is equal to 1 million, sorry रो नहीं है, this is P. P is equal to current value of the portfolio, this is equal to 1 million. मिलियन को याद रखने का तरीका यह है कि अगर आपको मिलियन का लफ्ज नजर आ जाए तो आप 6 zeros लगा देंगे. 1 million लिखा हुआ 6 zeros होते हैं, ये बात याद रखने वाली है. And A is equal to current value of the stocks underlying one future contract. A is equal to 250 times 250,000. So the total number of contracts to be shorted is equal to 1 million, that is P divided by A. A की वैल्यू क्या है? P by A है ना, तो P is equal to 1 million, A is equal to 250,000. कितना हो गया? 4. So the total number of contracts to be shorted is equal to, so 4 contracts must be shorted, future contracts must be shorted in this case. ठीक है. अच्छा, अभी मैं आपको इसके साथ बीटा की इंटरेक्शन बताऊंगी कि बीटा का इसमें क्या रोल है. When the portfolio does not exactly mirror the index, we can use the parameters beta. जब इंडेक्स उसको exactly mirror नहीं करता, when the portfolio does not exactly mirror the index, पहली बात तुमने ये की कि पोर्टफोलियो जो हमने हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो बनाया है वो एग्जैक्टली इंडेक्स को मिरर करेगा, लाइक इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करेगा. मिरर करने से मतलब यह कि जैसा पोर्टफोलियो है वैसा ही इंडेक्स रिस्पॉन्स करेगा, राइट. लेकिन ऐसा होता नहीं. वी कैन यूज द पैरामीटर बीटा फ्रॉम द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एंड यू नो व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. कैपे मॉडल से हमने डिराइव किया था बीटा, एंड दैट सेज, चले आपके लिए लिख देती हूँ जस्ट टू रिफ्रेश इट ऑन योर माइंड्स. RF plus required return is equal to RF plus beta RM minus RF, where इसको आप K कर दें. required return is equal to RF, where RF is equal to risk free rate, beta is equal to systematic risk, RM is equal to market return,
एंड रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अच्छा जी। सो we are going to use the parameter beta from the capital asset pricing model to determine the appropriate hedge ratio. Beta is basically the, beta क्या होता है? Beta is the systematic risk and it is the slope of the best line obtained when the excess return on the portfolio over the risk-free rate is regressed against the excess return of the market over the risk-free return. If beta is equal to 1, beta जब 1 होगा तो उसका मतलब है कि पोर्टफोलियो टेंड्स टू मिरर द रिटर्न ऑन द मार्केट। अगर हम ये कह दें कि किसी स्टॉक का बीटा 1 है या किसी पोर्टफोलियो का बीटा 1 है, उसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर 1% चेंज आएगी तो उस पोर्टफोलियो के रिटर्न में भी 1% चेंज आएगी। तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा ऑफ द मार्केट इज इक्वल टू 1। हमने ये कहा कि अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है तो उसका मतलब ये है कि उस स्टॉक की जो रिटर्न की चेंजेस हैं, अगर मार्केट में 1% चेंज आएगी तो जो पोर्टफोलियो है या जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली उसको मिरर करेगा। लाइक उसकी जो चेंजेस हैं, मार्केट की जो चेंजेस हैं, वो उसके पोर्टफोलियो के रिटर्न में एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होंगी। स्टूडेंट्स, आपने ये बीटा वाला कॉन्सेप्ट कैपे मॉडल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जरूर पढ़ा होगा। मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे रिफ्रेश करा रही हूँ कि बीटा इज बेसिकली दी स्लोप, it is basically the slope of the best line fit between the excess return on the market over the risk-free rate and the excess return on the portfolio of the market. So a portfolio with a beta of 2 is twice sensitive to the market movement as the portfolio with the beta of 1. अगर हम ये कह लें कि किसी पोर्टफोलियो का बीटा 2 है तो उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में 1% चेंज आएगी तो उसके अंदर double, that particular stock or portfolio is going to respond double, right? So it is therefore necessary to use twice as many contracts to hedge the portfolio. Similarly, a portfolio with a beta of 0.5, अगर हम ये कहें कि किसी पोर्टफोलियो का बीटा 0.5 है तो वो मार्केट को हाफ रिस्पॉन्स करेगा। लाइक it is half as sensitive to the market movement as a portfolio with a beta of 1. तो ये अगर मार्केट में 1% चेंज आएगा तो उसमें 50% चेंज आएगा उसके रिटर्न में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये जो क्वेश्चन हमने लिखी पिछली स्लाइड के ऊपर, अब हम उसको नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्टेड एंड स्टार इज इक्वल टू, हम इसको बीटा लिखेंगे, बीटा पी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है ना? So this formula assumes that the maturity of the future contract is close to the maturity of the hedge and ignores the daily settlement of the future contract. और हमने throughout this chapter ये assume किया हुआ था कि ये daily settlement of the future contracts को ignore कर रहा है। Now let's do another example. इसी को illustrate करने के लिए another example. Value of an S&P index. अच्छा जी, वैल्यू ऑफ S&P इंडेक्स। S&P इंडेक्स ऐसे ही है जैसे कि आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज है कि KSE 100 इंडेक्स है, ठीक है ना, या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरह से। इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1000, सपोज हमने कर ली। वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो $5 million, risk free interest rate 4% per annum, dividend yield on index 1% per annum. So this is the data. बीटा कितना है इसका? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इट इज इक्वल टू 1.5। 1 जो है वो मार्केट का बीटा है, उसके रिस्पांस में 0.5 या 1.5 या 2, आप उसका मतलब समझ सकते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी। अच्छा जी, वी अज्यूम
that a future contract on S&P index S&P 500 index with 4 months to maturity is used to hedge the value of the portfolio over the next 3 months. And the current futures future price of this contract $1,010 one futures contract is for delivery of 250 times the index. So it follows that A is equal to 250 multiplied by 1000. ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ ए. देन द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्टेड इज इक्वल टू, हमने फार्मूला लिखा था बीटा पी डिवाइड बाय ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 250,000 बीटा पी बाय ए एंड स्टार. बीटा की वैल्यू है, बैक पे जाए, बीटा दिस इज बीटा, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, दैट इज पी इज इक्वल टू 5 मिलियन. ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5 मिलियन. ए की वैल्यू 1 मिलियन, सॉरी ए की वैल्यू दिस इज ए की वैल्यू इज 250,000. कैलकुलेटर ले लें अपना. इट इज इक्वल टू 30. So the total number of contracts to be shorted is equal to 30. तो 30 contracts हमने short करने हैं in order to hedge the portfolio. Now suppose the index turn out to be 900 in 3 months and the future price is 902. The gain from the short position is then, हम suppose करते हैं कि जो index है वो it turns out to be 900 in 3 months and the future price now is 902. The gain from the future short contract position is 30. और ये देखिए पिछली प्राइस कितनी थी, ये फ्यूचर प्राइस, करंट फ्यूचर प्राइस ये थी और अब वो 902 पे चला गया. ठीक है, हम करेंगे 30 इंटू 30 कॉन्ट्रैक्ट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्टेड, ये इसकी फ्यूचर प्राइस है. बैक चले जाएं, ये देखें दिस इज द करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 1010. और अभी कितनी होगी प्राइस, 902 हो गई. थर्टी आपके कॉन्ट्रैक्ट है, मैं रिपीट करती हूँ, 30 आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है. मैं ये कह रही हूँ कि सपोज जो प्राइस 902 पे चली जाती है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी दी गेन फ्रॉम दिस शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स,
ये आपकी फ्यूचर प्राइस प्रीवियस वाली थी, ये अभी करंट वाली है. सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 101 minus 902 108 30 into 108 so it is equal to $810,000. The loss on the index is 10% and the index pays a dividend of 1% per annum or 0.25% per month. So when the dividends are taken into account, an investor in the index would therefore earn a minus 9.75% in 3 months period. So students, this is about how would you go for that. If number of contracts to be shorted आपने कैलकुलेट कर लिया और साथ ही आपने कैलकुलेट किया कि बीटा के साथ विद रेफरेंस टू बीटा उसकी वैल्यू क्या होगी, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्टेड. बीटा की सेंसिटिविटी मैंने आपको बताई कि इट डिटरमिन्स द सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट. और हमने देखा कि चेंजिंग वैल्यू ऑफ बीटा से किस तरह से फर्क पड़ेगा टू दी नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्टेड. आपके सामने न्यूमेरिकल किया एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट हाउ मच गेन ऑन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स वुड बी अचीव्ड. अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे कि अगर हम इसकी बीटा की वैल्यू को चेंज कर दें, चेंजिंग द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या असर होता है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, एंड ऑल्सो हाउ कैन वी रोल ओवर दी हेज फॉरवर्ड, हम अपने हेज फॉरवर्ड को किस तरह से रोल ओवर करेंगे. सो दीज आर दी अपकमिंग टॉपिक्स फॉर दी नेक्स्ट क्लास. होप टू सी यू सून इंशाल्लाह. I hope you have fully understood the concepts which I have delivered today. That was about the optimal hedge ratio. hedge के बारे में हमने बात की कि हमने hedge को किस तरह से implement करना है. hedging ratio, optimal hedge ratio क्या होती है, मैंने आपको उसके formulas बताए हैं, changing beta बताया है, number of contracts to be shorted with respect to the optimal hedge ratio वो हमने पढ़ा और मैंने कुछ आपके साथ exercises मिलके किए हैं. Please revise them and thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.